Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to the lecture number 17, week 9, System and Network Administration, Linux based, ITech 3116. So let's start from the recap of our previous lectures. During the last week, we were discussed about the concept of pipe, how you can use a pipe between two commands. If you want to use more than two commands at a time, then you people have to use a pipe within those commands. I hope you people have practiced with the pipe more than one commands and you execute that commands by using the Ubuntu terminal. And then we also discussed about the concept of filter in Linux by using grep command. Through grep command, how you can search a specific contents from the file. If you want to find a specific content from any file, then by using commands, as you know, Linux operating system is command line operating system, and you have a lot of experience in Windows operating system. In Windows operating system, you people just press the short key, Windows key with F, then the search button box display in on your right side of the corner of your laptop or desktop. Then you write a specific content in that search box, and if that specific content exists in that file in Windows operating system, all the contents highlighted. And same experience if you want to do in Linux operating system, then you people how can find that specific contents in Linux operating system. In our previous lecture, we use grep command. Through grep command, you can find a specific information in different ways. And then we were also discussed about the server configuration in Linux, and where we see three different models in Linux operating system. We have three different models such as client server model, peer-to-peer model, and hybrid model. In client server model, as you know, the best example of client server model is World Wide Web. World Wide Web using the client server model. What is the client server model? As I explained in our previous lecture, client server model are those models where the multiple clients generate queries or requests to a specific server for specific results or responses. Many clients at a time एक सर्वर को अटैच किए जाते हैं थ्रू नेटवर्किंग, एंड एट अ टाइम आप उन क्लाइंट से रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं और उन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स जो करने वाला है उसको हम सर्वर कहते हैं. So that is a client server model. In peer-to-peer model, there is no central device. In peer-to-peer model, there is no central device. Each peer is have authorities to share their data and devices to the other peer. In hybrid model, both combinations of client server model and peer-to-peer model consist in hybrid model. So let's today's class we will discuss about the remaining lecture of our previous lecture we will cover in this lecture, and also we discuss about the concept of network protocol. So here is the network model. A network model represents the architecture of a computer network. The most popular network models are described below, such as client server model, peer-to-peer model, and in these models, there are a lot of protocols used for the sake of communication. As we discussed already in our previous lecture, there is one more protocol, HTTP. HTTP is an abbreviation of Hypertext
transfer protocol. So through HTTP, clients and server communicate via HTTP request and response messages. आपका क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू उनकी कम्युनिकेशन जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर होगी. The three main HTTP messages that are GET, it requests a data from a specified request resources. POST, it submits data to processed to a specified resources. And HEAD, the HEAD method asks for a response identical to that a GET request, but without the response body. So there are three types of HTTP: GET, POST, and HEAD. By using these messages, client can communicate with the server. So HTTP utilize TCP port 80 by default. By default HTTP जो है वो port 80 को use करता है, and there are also many other, one another port 8080 can alternatively be used if the 80 port is not available. And I hope you people know the 8080 port is used for the sake of security purposes. The HTTP also includes ARP, Address Resolution Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol, and the File Transfer Protocol. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि HTTP जो है उसके साथ ये तीन प्रोटोकॉल्स भी यूज हो रहे हैं for the sake of client server communication. So what is ARP? Address Resolution Protocol क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूजर को? ARP converts an internet protocol address to its corresponding physical network address. Here I am telling you ARP, Address Resolution Protocol, converts an internet protocol address. आपका जब आप अपनी डिवाइस को इंटरनेट पे लगाते हैं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस है उसको वो कन्वर्ट कर देता है आपके फिजिकल एड्रेस के ऊपर. आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि एक आपका लॉजिकल एड्रेस है, उस लॉजिकल एड्रेस के अगेंस्ट आपका फिजिकल एड्रेस में उसको कन्वर्ट कर देता है. ARP is a low level network protocol operating at layer 2 of the OSI model. What means low level network protocol? If you know about the OSI model, what is OSI model? Actually OSI models represents 7 layers architecture. I hope you people learn about OSI model, these 7 layers model in your computer communication networks subject or in your previous semester. Might be you people discuss about the 7 layers concept. 7 layers physical, from physical to network layer, data link layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. So by using these 7 layers, you can send a data from sender to receiver. Sender क्या करता है? आपके एप्लीकेशन लेयर को अट्रैक्ट करता है, एप्लीकेशन लेयर को by using different applications. अब ये 7 layers जो हैं वो आपस में कैसे डाटा को ट्रांसफर कर रही हैं, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है. इंशाल्लाह we will discuss in another time. ARP is implemented usually in device drivers
of a network operating system, and it is most commonly seen on Ethernet network, token ring and other physical networks. आपके जितने भी नेटवर्क यूज हो रहे हैं उसके ऊपर आपका ARP प्रोटोकॉल जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपके एड्रेस को असाइन करता है, उसको रिजॉल्व करता है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। किन दो डिवाइसेस के दरमियान आपकी कम्युनिकेशन होनी है, उन डिवाइसेस का एड्रेस जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा, उसको कौन मेंटेन करेगा, उसको कौन बताएगा आपके कि आपका क्या एड्रेस है। तो इस एड्रेस की जितनी भी क्यूरीज हैं वो थ्रू एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो फुलफिल होती हैं। इसमें आप की डिफरेंट जो है वो नेटवर्किंग की लेआउट्स बताएंगे। हमारे पास ईथरनेट नेटवर्क हो सकता है, आपके पास डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं जिसमें बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, टोकन रिंग टोपोलॉजी जो इनके अंदर आपका टोकनिंग जो है वो यूज होता है। इस तरह स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, and there are also many other physical networks if by using these topologies. What is DSP? DSP represents the dynamic host configuration protocol. It allows a computer to join an IP address network without having pre-configured IP address. DSP is a protocol that assigns unique IP address to a device, then release and renews these addresses and devices leave and rejoin the network. आपका जो DHCP प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, ये आपकी जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क के ऊपर होंगे उन डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली एक आईपी उनको असाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी नेटवर्क के अंदर अपने सिस्टम को अटैच करते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम अटैच करेंगे तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या करेगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डायनेमिकली एक पूल उसमें आईपी का आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को यूज करते हुए एक आईपी का पूल जो है वो अपने पास क्रिएट कर रखा है, या आप इस तरह कह लें कि आप उसने नंबर ऑफ आईपीज को बाय कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, उसने 100 आईपीज को बाय किया हुआ अपने पास, 100 आईपी का पूल उसने डीएसपी होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के अंदर रख लिया है। तो वो 100 आईपीज का जो पूल है उसमें से जैसे जैसे आप अपने सिस्टम्स को उस नेटवर्क के साथ अटैच करते जाएंगे तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन डायनामिकली आपके सिस्टम को आईपी जो है वो फर्स्ट टाइम असाइन करेगा। मैनुअली आपको अपने सिस्टम को कोई आईपी असाइन नहीं करना पड़ेगा। वन बाई वन, फॉर एग्जांपल आपके लैब्स के अंदर 50 सिस्टम जो हैं वो आपने अटैच करने हैं, तो 50 सिस्टम्स को आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो वन बाई वन आईपी को असाइन करेगा। दैट इज़ वेरी टाइम टेकिंग एंड हेक्टिक जॉब फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर। तो उस जॉब को, इस हेक्टिक जॉब को रिजॉल्व करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप डीएचसीपी प्रोटोकॉल को अपने सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर आप एक आईपी का पूल क्रिएट कर लेते हैं, और फिर वो नंबर ऑफ आईपीज जितना भी पूल आपने क्रिएट किया हुआ है उतने सिस्टम्स आप अपने सिस्टम के साथ, अपने नेटवर्क के साथ अटैच कर सकते हैं, और आपका हर आने वाले नए सिस्टम को एक नया आईपी जो है वो डायनेमिकली उस पूल में से आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल उठाएगा और आपके सिस्टम को दे देगा, अलॉट कर देगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि देन रिलीज एंड रिन्यूज दीज एड्रेसेस एज डिवाइस लीव। जैसे आपकी डिवाइस डिटैच कर लेते हैं अपने नेटवर्क को, तो यहाँ पे लीज टाइम का कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका। अगर आपने पहले इसको कहीं पे स्टडी किया हुआ है तो ज़रूर आपको पता होगा व्हाट इज लीज टाइम। तो लीज टाइम आपको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम 8 डेज, 8 डेज पे ये कॉन्सेस करता है आपका जो है वो आईपी एड्रेस एट अ टाइम। आपको 8 दिन के लिए ये एलोकेट होता है, और 8 दिन के बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है आपका जो आईपी है। तो जैसे ही आप अपने सिस्टम को डिटैच करते हैं तो आपको एक नया आईपी लेने के लिए
दोबारा आईपी लेने के लिए डीएचसीपी जो है वो आपका लीज टाइम को देखेगा क्या, अगर विद इन लीज टाइम आप दोबारा अटैच हो गए तो वो आपको पहले वाला आईपी असाइन कर देगा। अगर आपका लीज टाइम एक्सपायर हो गया तो आपको एक नया सिस्टम आईपी जो है वो एलोकेट होगा बाय यूजिंग डायनामिक होस्ट। सो व्हाट इज एफटीपी, file transfer protocol? Why we are studying this protocol? As you see, this is a part of networking. आप नेटवर्क को एज एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करने जा रहे हैं। आप अपने नेटवर्क को के साथ मल्टीपल क्लाइंट्स जो हैं वो अटैच करने जा रहे हैं, और सर्वर्स, आपका एक सर्वर होगा और क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन होगी। तो क्लाइंट टू सर्वर जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वो कैसे कम्युनिकेशन हो रही है और किन प्रोटोकॉल्स के ऊपर कम्युनिकेशन होगी और किन लेयर्स को यूज करते हुए आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो देयरफॉर वी आर डिस्कसिंग अबाउट protocols. So what is file transfer protocol? File transfer protocol allows you to transfer files between two computers on the internet. Definitely, when you want to send a file from one client to another client, then you have to know about the concept how your file can move on the internet. आपकी फाइल जो है वो इंटरनेट के ऊपर कैसे एक यूज़र से दूसरे यूज़र को ट्रांसफ़र हो रही है, सेंड हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है बाय यूजिंग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपकी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर आप अपनी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ सिंपल नेटवर्क प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बेस करता है, एंड सीजीआई कॉमन गेटवे इंटरफेस। As you know, people, gateway is a very important in networking. The concept of gateway, it's by using gateway interface you can secure your data. So common gateway interface is the set of specification that defines how a web server passes a web user's input to an application program running on the server, receives a response and passes data back to the user. आपका जो कॉमन गेटवे है ये डिसाइड करेगा कि कौन सी सर्वर से आपका रिस्पांस किस क्लाइंट को देना है और कौन सी आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसको अलाउ करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई नई इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका जो गेटवे है, आपका गेटवे इंटरफेस जो है माइट बी डिटेक्ट कर ले कि ये कोई मलिशियस एप्लीकेशन है, ये कोई किसी हैकर या अटैकर की तरफ से कोई इसके साथ वायरस हो सकता है जो आपके डाटा को, आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो व्हेन यू एज एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको असाइन करेंगे, उसको अलाउ करेंगे, देन यू कैन इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन। इस तरह आपकी कम्युनिकेशन, आपका डाटा जो है वो इन हो रहा है और आपका डाटा जो है वो आउट हो रहा है। जब आपका डाटा इन और आउट हो रहा है तो कैसे आपका डाटा जो है वो सिक्योरली आपका डाटा जो है वो सेंडर रिसीव कर पाएगा बाय यूजिंग कॉमन गेटवे इंटरफेस। One advantage of CGP script is that they are consistent among operating system. आपके operating system के साथ ये built in। One another is SSAL, secure socket layer. What is secure socket layer? Actually, secure socket layer is a security technology helps you to improve the safety of internet communication. आपकी इंटरनेट के ऊपर जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन को मोर सिक्योर करने के लिए जो नई एक टेक्नोलॉजी बिल्ट इन की गई है, दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर। हियर अ वर्ड यूज सॉकेट। व्हाट्स मींस सॉकेट? सॉकेट से क्या मुराद है स्टूडेंट? यू कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एंड पोर्ट। आप कौन सा आपके आईपी के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं और किस पोर्ट को यूज कर रहे हैं। As you know, every protocol have some specific hard binding ports
सच एज HTTP पोर्ट 80 को यूज कर रहे हैं। अगर सिक्योर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो 8080 के साथ 80 भी कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं और ए पोर्ट 8080 को भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सॉकेट लेयर्स को सिक्योरली कम्युनिकेशन को सिक्योर रखने के लिए आप SSL को इंट्रोड्यूस हुई है। SSL is a standard for encrypted client server communication between the network devices. एक्चुअली SSL करता क्या है, वो आपकी कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट कर देता है। व्हाट्स मीन इनक्रिप्ट? आपकी कम्युनिकेशन को साइफर में कन्वर्ट कर देता है। साइफर से क्या मुराद है? साइफर से मुराद है कि आप अपनी डाटा को, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। Everyone can read if he or she can read English contents, and everyone can understand what's the mean of these contents. जब आप अपनी इस इंफॉर्मेशन को किसी नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो आपकी सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो आपकी उस कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट कर देगी, उसको साइफर में कन्वर्ट कर देगी, एक ऐसे डाटा में कन्वर्ट कर देगी जिसको आप रीड नहीं कर सकते, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इसका क्या मीन है, ये क्या लिखा जा रहा है। एक अनरीडेबल फॉर्मेट में, अनरीडेबल लैंग्वेज में आपके डाटा जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एक ऐसी जो दुनिया की कोई लैंग्वेज नहीं होगी। जब आपकी जो इंफॉर्मेशन है किसी ऐसे फॉर्मेट में, मैं उसको लैंग्वेज तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो कोई लैंग्वेज है ही नहीं, किसी ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाए उसको दुनिया की किसी भी लैंग्वेज के थ्रू उसको रीड ना किया जाए, उस इंफॉर्मेशन को हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। आपका सिक्योर सॉकेट लेयर जो है स्टैंडर्ड फॉर इनक्रिप्टेड क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, या आपके क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान डाटा शेयर हो रहा है, उसको इनक्रिप्ट कर देता है। Between the network devices, there are multiple devices used in your network such as router, switches, and many more. A network protocol secure socket layer runs on top of TCP IP protocol. What is TCP IP? TCP IP क्या है? So TCP represents the transmission control protocol and IP represents the internet protocol. ये प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के को यूज करते हुए आप अपने डाटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं। और आप अपने डाटा को कैसे सेंड कर रहे हैं और कैसे रिसीव कर रहे हैं? बाय यूजिंग TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के जरिए ये एक प्रोटोकॉल है जो आपके डाटा को सेंड कर रहा है और इसी प्रोटोकॉल्स के जरिए आप अपने डाटा को रिसीव भी कर रहे हैं। देयर इज वन अनदर प्रोटोकॉल विद TCP and UDP. I don't know why this happened. क्यों हो रहा है उसको लिखना है, मैं कुछ जा रहा हूँ और वो लिखा कुछ जाता है। TCP and UDP, User Datagram Protocol. What is the difference between TCP and UDP? Actually, TCP assure your communication, आपकी कम्युनिकेशन को सिक्योरली कम्युनिकेट करता है, आपको इस बात की गारंटी देता है कि आपके डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी, आपका डाटा जो है वो एक्चुअल डेस्टिनेशन पे डिलीवर होगा और आपका डाटा जो है वो टाइमली कम्युनिकेट होगा सेंडर के ऊपर। और ये तीनों चीज़ें जो है वो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल भी फॉर सेक ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स के अंदर ब्रॉडकास्टिंग होती है।
ये आपकी कम्युनिकेशन को ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये नहीं बताएगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो किसी स्पेसिफिक यूजर को ही जस्ट, जिस यूजर को, जिस रिसीवर को आप सेंड करना चाहते हैं, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे रिसीव हो, बल्कि ये आपकी कम्युनिकेशन को ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब जब आपकी कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट होगी तो आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, आपके कॉन्टेंट्स जो हैं वो सबके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो यूजर डाटाग्राम आपका जो है वो सिक्योरिटी नहीं आपके प्रोवाइड करता, आपके डाटा की इंटेग्रिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता, जो टीसीपी प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड करता है। सो सिक्योर सॉकेट लेयर, by using secure socket layer utilize several standard network security techniques including public key, symmetry key and certificates। यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता चलूँ। सिक्योरिटी के अंदर जैसे आपने अपने डाटा को इनक्रिप्ट किया, आप अपने डाटा को सिक्योर करने जा रहे हैं, तो सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, एक ऐसे फॉर्मेट में बदल देता है जिस फॉर्मेट को आप रीड नहीं कर सकते। उसको मोर सिक्योर करने के लिए जो इंक्रिप्शन के अंदर वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर रहा है, वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? दैट इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड सर्टिफिकेट्स। आप अपने सिग्नेचर उसमें ऐड कर सकते हैं, आप अपना हैश फंक्शन उसमें ऐड कर सकते हैं, आप डिफरेंट कीज को यूज कर सकते हैं, पब्लिक की प्राइवेट की के कम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हैं, आप सिमेट्रिक की को कम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। इन स्पेसिफिक कीज के थ्रू आप अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे आपके घर का लॉक है, उसकी एक स्पेसिफिक की है और उसकी एक दो कॉपीज होंगी। ठीक है, वो कॉपीज आपके घर के मेंबर्स के पास होंगी। ठीक है, कोई भी एनी अदर यूजर आपके उस लॉक को ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लॉक की सिक्योरिटी। और अगर आप कोई लॉक ऐसा लगा देंगे जो ख़राब हो चुका है, जिसमें कोई भी की इंसर्ट की जा सके, तो आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक है। दैट इज हैकर, हाउ हैकर्स ब्रेक योर सिक्योरिटी। वो मल्टीपल कम्बिनेशंस ऑफ कीज जो है वो इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, अटेम्प्ट लेते रहते हैं डिफरेंट कीज के साथ, और ये समटाइम्स आपकी उनकी अटेम्प्ट्स जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। वैसी ही की जो कि आपने जनरेट कर रखी है, जो कि आपने यूज़ किया है अपने डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, उसी की के कम्बिनेशन को वो यूज़ करते हैं और आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर देते हैं। So, websites commonly use SSL to guard private information such as credit card numbers। आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सिक्योर सेल लेयर को यूज़ करती हैं for the sake of secure communication between the client and server। So that is all for about different protocols and the concept of protocols and the features of protocols, some requirements for the installation uh, to configure the Apache. As you know, we are going to configure Apache server in your Ubuntu. So this is minimum requirement to install, to configure Apache in your Ubuntu server। आप अपने Ubuntu सर्वर के ऊपर अगर अपने Apache को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ का CPU, 512 मेगाबाइट रैम और 1.5 गीगाबाइट हार्ड ड्राइव पे स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए। सर्वर स्टैंडर्ड और मिनिमम आप कितनी रिक्वायरमेंट्स को आपके पास होगी, वो 300 मेगाहर्ट्ज़, 384 मेगाबाइट रैम एंड 150 मेगाबाइट हार्ड ड्राइव स्पेस को यूज़ करता है आपका अपाची कॉन्फ़िगर करने। वाई सर्वर एडिशन, आप सर्वर एडिशन को क्यों यूज़ करने जा रहे हैं? द सर्वर एडिशन प्रोवाइड्स अ कॉमन बेस फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्वर एप्लीकेशंस। जितनी भी सर्वर एप्लीकेशन है उनको यूज़ करने के लिए और उनके लिए साथ ये सपोर्टिव है। सिंपल डिज़ाइन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर desired services such as file, print services, web hosting, email hosting, and sorry, what is the difference between server and desktop edition? आपके सर्वर
Ubuntu server और desktop Ubuntu में difference क्या है? There are a few difference between the Ubuntu server edition and Ubuntu desktop edition. Desktop edition को तो already आप use कर रहे हैं, तो हम server edition के ऊपर jump करने जा रहे हैं. It should be noted that the both editions use the same apt repositories, making it just as easy to install a server application on the desktop edition as it is on the server edition. The difference between the two editions are the lack of X Windows environment in the server edition and the install. So this is all for this lecture. Inshallah, we will discuss about the installation in our next class. See you. Take care. Allah Hafiz.